सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एंड अ जोशफुल जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम टू अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ अंतिम पग। एंड टुडे वी हैव विकास ठाकुर। विकास मेरा फ्रेंड बना था एसएसबी में एंड ही हैज एक अच्छी जर्नी उसने अभी तक कवर अप करी है उसकी लाइफ में। एंड विकास, मैं चाहूंगा आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। So, hello everybody. I'm Vikas Thakur, and for the first time, I'm at Mayank at 33 SSB Bhopal, uh, outside Sultania Infantry Lines, and I still cannot forget our first meeting. Till then, we are friends and in contact. So, recently, he contacted me to join the podcast and his series Antim Pag, and to aware many aspirants what is SSB and rest other things that we will discuss in this podcast. थैंक यू सो मच विकास। और जैसा विकास ने बताया, वी मेट आउटसाइड द सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस एंड मेरा सबसे पहला दोस्त विकास ही बना था। एंड जो चीज हुई थी कि वी थॉट के स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करेंगे, आजू बाजू खड़े रहेंगे तो सेम चेस नंबर मिल जाएगा एंड फिर जीडी में ग्रुप को डोमिनेट कर देंगे। बट देन एक्चुअली हुआ क्या कि विकास गॉट आई थिंक 220 चेस नंबर, है ना, स्क्रीनिंग में। Yeah, yeah, yeah. हाँ, एंड आई गॉट 222। कोई तो एक आ गया था हमारे बीच में। तो फिर Mm-hmm. विकास का ग्रुप अलग हो गया, मेरा ग्रुप अलग हो गया, बट फॉर्चुनेटली स्क्रीन इन के हम दोनों स्क्रीन इन हो गए थे। तो Mm-hmm. इट वॉज अ वेरी मेमोरी। तो विकास, वी विल फर्स्ट कवर अप योर एसएसबी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्क्रीनिंग से स्टार्ट करते हैं विकास। स्क्रीनिंग Yeah, yeah. में अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओआईआर। सी व्हाट आई फील इज कि जो भी एसएसबी का प्रोसीजर है पूरा उसमें कोई भी टेस्ट हो उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि बाकी अदर टेस्ट का. If anybody is telling someone that OIR is not important, only PPDT and your narration and GDs is more important on the day of narration. It is important, but the thing is when it comes to recommendation, your overall performance is checked throughout 5 days. Your OIR will be checked, both the test in OIR, verbal and non-verbal, and your PPDT also, then your rest of the procedures also. So it is very important. According to me, it is very important because when people get recommended and when final merit list come out, so the person who have performed well in PPDT also and OIR also, because OIR you get, it is so simple that if you get it correct, you will get a mark. If you not get it correct, you will not get a mark. So if you have scored well in OIR and writtens like in psychs, you have good marks. You have to have an edge to make it to the merit list. If you are thinking that I have to recommend, I want to recommend, and then without OIR I will get recommended, or without if I am weak in psych or if I am weak in GTO, it is not like that. You have to be good in all the procedures. You have to leave your impact to psychologist also, to GTO also, to interviewing officer also, in all the three officers at the last day when they will decide during your conference whether they have to recommend you or not. It plays a very important role. So according to me, OIR is very important. Every test is important in SSP. बिल्कुल बिल्कुल। और विदाउट ओआईआर यू कैन नॉट गेट स्क्रीन इन। यू शुड हैव Yeah, एटलीस्ट yeah, मिनिमम ऑफ ओआईआर रेटिंग 3। तो सबको पता ही है। तो वन yeah, yeah. हैज टू प्रैक्टिस ओआईआर मोर एंड मोर। एंड इट इज नॉट कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है वो। बेसिक, आई थिंक नहीं बेसिक है. मेंटल एबिलिटी ज्यादा है। Yeah, or it depends on entries also, because if you go in technical entries, then because the screening rate is very low, so you cannot compromise at any step. You have to give it your best in OIR also, in PPTT also, in narration also, in discussions also. You have to give your best. बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे विकास ने टेक्निकल एंट्रीज की बात करी, आज के टाइम पे विकास एक ऐसा
बहुत ही ट्रेंड सा चल रहा है कि लोगों को लगता है कि दे विल गो इनटू द टेक्निकल एंट्रीज, दे विल डू द हम्म, कोचिंग 15, 20, 25,000 रुपीज, और वो टेक्निकल एंट्रीज में जाएंगे एंड दे विल गेट रिकमेंडेड। बट टू बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट द ट्रुथ। जो बात रिटर्न एंट्रीज की है, जितना सिलेक्शन रेशियो रिटर्न एंट्रीज में है, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एंट्रीज में नहीं है। यहाँ पे 300, 350 बच्चे आते हैं, एंड या आई थिंक 10 रेशियो होता है। इवन हम लोग के भी बैच में देर वर 280 और 285 समथिंग रिपोर्टेड, एंड आउट ऑफ दोज 28 वर स्क्रीन इन, या और उसमें भी एट लास्ट 2 वर रिकमेंडेड। तो एक या जनरल रेशियो वही रहता है। एंड ओवरऑल सीट्स नेवी टेक एंट्री में हमारे टाइम पे आई थिंक दैट दोज वर 35, इफ आई एम या नॉट रॉन्ग विकास। या और आज तो, अब आज के टाइम पे तो नेवी टेक एंट्री में वुमेन्स के लिए भी सीट आ गई, गर्ल्स के लिए हम्म। भी सीट्स कर दी। तो कंपटीशन उसके साथ बढ़ भी गया है। तो लाइक आई डू ऑल्सो सजेस्ट के इफ यू विल फोकस मोर ऑन रिटर्न एंट्रीज, अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम निकल पाते हो, तो इट विल गिव यू एन अ गुड एज इन एसएसबी। At last, the candidate who is more, determined, and but we see candidates who got recommended in 12 attempts, 13 attempts, keep on going on returns also, technical entries also. If you really want to be there, if you are quitting in between, then you were never meant to be there. This is what I think. See, SSB do not, uh, distinguish you whether you are coming from for a technical entry, or for written entry, or for ND entry, IM entry, or OT entry. They do not distinguish. What they are looking for is OLQ. So if you have OLQs, you will be recommended. If you do not have, and second thing, what people think is only four candidates will get recommended, five will get recommended. I say if out of 24 screened in candidates, if all have OLQs, they all will get recommended. Nobody will be left behind. The person who have officer like qualities and what is needed for the forces in him, he will never be left behind. He will be recommended. We have seen cases where out of 25, 19 there were 19 recommendations. Sometimes there were whole batches were washed out. जी जी। नाउ विकास, थोड़ा पीछे मैं जाना चाहूंगा। आई वांट टू टेल एवरीवन कि विकास इज एन आर्मी ब्रेड, एंड ही आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड कल्चर। तो विकास, डिफेंस में जाने का तो आई कैन रिलेट के, हाँ, यू हैव बीन इन दैट बैकग्राउंड, सोचा होगा। बट ये प्रिपरेशन कब से चालू हुई? लाइक व्हेन यू थॉट, रियलाइज के हाँ अब मेरे को शुरू करना चाहिए? So this goes back to when I was in fourth. It started from Sainik school preparation. Actually, I was trying to get into Sainik school, but unfortunately, I was not able to clear returns at that time. And a few of my friends cleared, and they went to Sainik School Sujanpur. And from there, back in mind, I had this dream that this is what I can do. And also, being from a family in which two generations have served in the forces, from childhood, you listen to their stories from your grandfather, your father, and you get motivated and you get a direction in which you have to head to. So, the same was with me. So, at an early stage, I decided that I want to be an army officer or an officer in the forces. So from there I started, and unfortunately I was not able to clear my Sainik school examination. Then I started thinking that what should I do to or how should I prepare myself. Then I started doing, I was good in academics from childhood only. Then I started to participate more in curricular activities also. I joined NCC, then NSS. Then I had experience of boarding also. I went to boarding school. I studied there. So there we were cut off from the rest of the world. We do not have any mobile phones. We were with our buddies, house captains. I became house captain. Then I attended NCC camps, various NCC camps, then NSS camps, including youth leadership camp, then pre-RD camp, state level. Then I think from there I these things inculcated in my personality, which I was not aware that I have these in me at an early stage. Because when I was going for my first SSB, I was also thinking that whether I will be able to clear or not. Because you
yourself cannot judge that you have these qualities in yourself. But I was sure that one day I will make it, uh, because I see, what I think is your personality development depends on the environment you are in, you know, the type of people you are surrounded with. So I was having friends who were we were having same aim. We were doing एनसीसी, we were having रगड़ा, है ना, इंस्ट्रक्टर्स और जो हमारे उस्ताद थे, जो वो हमको बहुत रगड़ा देते थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे हमने यू नो कैंप्स में हमने बहुत मतलब रिग्रेसली, एक टाइम पे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। वी वेंट फॉर फायरिंग। तो सुबह 6:30 पर हमने टारगेट्स लगाए 25 मीटर रेंज पे। तो एट 6:30 वी वर रिलीज्ड एंड वी वर आस्क्ड टू गो बैक 1 किलोमीटर and have our breakfast, get dressed up, and report at 7 o'clock. 6:30 we were released. We had to go back 1 kilometer, have our breakfast, get dressed up, and ready for muster also. So we went back at 6:57. I was ready. Then I thought I should have breakfast. We went to breakfast, but then our cadet captain, he was from naval unit. So he asked that you are 10 seconds late. Late. We were going for breakfast, not for mustard. So at morning 7 o'clock and 10 seconds, we reached with our cup, metal mug for tea in our hand, and our utensils to. We were heading towards mess, and he asked, "You guys are 10 seconds late. Bend down, forget breakfast, and bend down." So these type of situations we had faced in our early teens, 15, 14 years of age. After clearing written exam, you cannot prepare for SSB for like 25 days and 30 days. You are preparing and you are getting recommended. The guys who बिल्कुल। prepare for 25 days and 30 days getting recommended, they are born and brought up, or they are living in an environment which have inculcated 15 officer like qualities in them. एग्जैक्टली। There is always a backstory. The Where is the guy coming from, what he has done, what he is doing, where he is living, among uh, his friends, you know, what type of friends he have. So these all play a very important role. We cannot crack SSB in 25 days or 30 days. Like we are going for a after clearing exam, I am taking admission in one of the reputed coaching academies, and in 25 or 30 days they are recommending me. It is not like that. SS The simple thing to clear SSB is have a proper lifestyle. The person who is disciplined in his real life will have officer like qualities. He will inculcate officer like qualities in it. So it is as simple as that. You do not have need to make your life complex. No, make it simpler. Make it simpler. It's from starting only, like at the stage you decide that you want to join forces, from the day one you should make your lifestyle as an officer. You should start feeling that I am going to be an officer. I should start from now only. So I had faced many rejections. In hostel, I also wanted to be a hostel captain, then ended up being a house captain. So things were not, things are not according to you always. You have to keep going, keep going, keep going. Then again, I wanted to be in the forces. Now I'm again ended up somewhere else only. So Yeah, yeah. So coming back to the SSB, because लेट्स आफ्टर स्क्रीनिंग द फर्स्ट टेस्ट हमें हमारा जो होता है इट इज अ साइक टेस्ट। yeah, एंड दैट इज द वन थिंग हर किसी इंसान को लगता है कि ही इज गुड इन साइकोलॉजी, क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगह सही है। बट जो साइकोलॉजिस्ट देखता है शायद वो नहीं देखना चाहता है, ही इज सीइंग दैट 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, राइट? तो वी डू हैव 4 टेस्ट इन साइकोलॉजी, TAT, WAT, SRT, and then the self-description test. So Vikas, I would like to know एक एक करके your approach and your reaction on TAT, WAT, SRT,
एंड आपने कैसे वो एग्जाम्स दिए, वो असेसमेंट्स दी, क्योंकि वो साइकोलॉजी अराउंड एक सवा घंटे का होता है। हाँ हाँ। एंड राइट व्हेन कीप ऑन राइटिंग, वो जो हालत होती है, आई थिंक एक जो भी जिसने भी एसएसबी एक्सपीरियंस किया है वो समझ सकता होगा उस हालत को। तो विकास, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। साइक में मैं टीएटी से शुरू करता हूँ। सो टीएटी में सबको मालूम है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि हमें पिक्चर्स दिखाई जाती है। इट इज़ लाइक पीपीटीटी। So you are shown a picture, you have to write a story in a given interval of time. Then next picture will flash on the screen, and then you have to write second story. So ऐसी बहुत सारी आपको स्टोरीज लिखनी पड़ती है। फिर एंड में आपको एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाती है, उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्टोरी लिख सकते हैं। सो जो मेरा ब्लैंक स्टोरी था वो मैंने पहले से प्री प्लान किया था कि मैं ब्लैंक में क्या लिख के जाऊंगा, वो मैं सोच के गया था। और जैसे आपको याद होगा कि हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन हम स्क्रीन इन हुए थे, तो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हमसे मिलने आए थे। तो दे गिव अ वेरी गुड सजेशन दैट प्लीज फिल योर पीआईक्यू फॉर्म, यू नो बहुत अच्छे से, और जो आप लिखें उसको याद रखें। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जहाँ पे भी आपने अपने पीआईक्यू में जो लिखा है वो आपके स्टोरीज या डब्ल्यूएटी या सिचुएशंस में रिलेट करता है, तो उसको आप पक्का करें। लाइक जैसे मैंने अपने अचीवमेंट्स में लिखा था कि मैं हाउस कैप्टन था, पोजीशन एक्वायर्ड एक कॉलम होता है पीआईक्यू में, तो वहाँ पे मैंने हाउस कैप्टन लिखा था, हाउस कैप्टन लिखा था। तो जो ब्लैंक स्टोरी थी वो मैंने ये बनाई थी कि मैं हाउस कैप्टन था, और मैंने यू नो बास्केटबॉल टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया। सो इट बिकम रिलेटेबल। जब साइकोलॉजिस्ट आपका चेक करेगा तो उसके दिमाग में ये फैक्टर नहीं जाएगा कि यार ये कुछ भी मतलब इसने लिख दिया। उसको रिलेटेबल लगेगा कि हाँ इसके पीआईक्यू में है कि अच्छा हाउस कैप्टन था, एज हाउस कैप्टन इसने वो करवा दिया। तो जो पिक्चर्स का ऐसा है कि पिक्चर को पहले तो क्लियरली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। मैंने मतलब हमारे साथ मेरे एसएसबी में एक ऐसा कैंडिडेट था जिसने पिक्चर को गलत ऑब्जर्व कर लिया। तो इवेंचुअली ही एंडेड अप राइटिंग समथिंग एल्स ओनली, इट वाज नॉट रिलेटेड टू द पिक्चर। सो वो पिक्चर को उन्होंने क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया और उनकी स्टोरी पिक्चर के रिलेटेड नहीं बनी। पिक्चर को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक स्टोरी बनाना। आप see, if we are appearing in SSP, our age will be, if we are going for NDA entry, about 19, 18 and a half, 17 and a half। तो एक मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि आप स्टोरी सिर्फ दो चीज़ों पर बना सकते हैं, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस। आइदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और यू हैव ऑब्जर्व्ड इट। या तो आपने वो वैसी सिचुएशन कहीं पे देखी है, या आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। द हीरो ऑफ योर स्टोरी इज इवेंचुअली यू। जो आप लिख रहे हैं मतलब आप करेंगे। तो अगर आप एक सिंपल पिक्चर को एग्जेजरेट करके कॉम्प्लेक्स करके उसको बहुत अनरियलिस्टिक जैसी स्टोरी बनाएगी, तो वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है मेरे अकॉर्डिंगली। दिस इज वट आई थिंक। सी आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं तो वही बता सकता हूँ जो वट आई बिलीव। सो आई बिलीव इज कीप इट सिंपलर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हीरोइक स्टोरी बना के रिकमेंड होंगे, ऐसा नहीं है। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे वो आपके माइंडसेट को ये शो करता है कि यू हैव वेरी सिंपल अप्रोच। यू आर नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स। कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर आपकी सिंपल है और स्टोरी आपने कॉम्प्लेक्स कर दी। यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। डब्ल्यूएटी में भी आप व्हाट हैपेंस इज कि कोई वर्ड आया, आप बहुत अच्छा सेंटेंस सोचने जाते हैं। जहां आप सोचने गए वहां पे आप गलती करेंगे। आई वॉज सजेस्टेड टू राइट what comes in mind फर्स्ट आफ्टर सीइंग द वर्ड इन डब्ल्यूएटी। और मैं बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूएटी में मैंने 60 में से 59 अटेम्प्ट किए। डब्ल्यूएटी में 60 वर्ड्स में से 59 मैंने सेंटेंसेस बनाए। वन में मेरे को एक्चुअली वन में एक सेंटेंस में मुझे उसका जब तक मैं समझता कि उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में, वो नेक्स्ट वर्ड फ्लैश हो गया। तो आप जैसे नेक्स्ट वर्ड फ्लैश हो गया आप नेक्स्ट पे चले जाओ। डब्ल्यूएटी में भी आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाए, कोई कॉम्प्लेक्स ना बनाए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, पॉजिटिव अप्रोच रखे। सी व्हाट हैपेंस इज बनाने का नहीं है, जिस कैंडिडेट की अप्रोच पॉजिटिव होगी, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, इवेंचुअली पॉजिटिव ही सेंटेंसेस बनाएगा या पॉजिटिव ही स्टोरीज बनाएगा। अगर आप उसको फैब्रिकेट करने जाओगे यू विल मेक मिस्टेक्स, जो कि साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेगा, वो उनका वही काम है। तो इसीलिए आई
spoke before, that if your lifestyle and your approach is positive in life, you will end up making positive decisions, positive stories, positive sentences. एसआरटी में क्या करते हैं लोग? इफ आई नाउ आई विल कम टू एसआरटी। एसआरटी में क्या होता है कि लोग बहुत लंबा सेंटेंस एक्सप्लेन बहुत लंबा करते हैं। नहीं, आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, आप शॉर्ट आंसर दो एक सिचुएशन का। आपका आंसर सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को समझ आना चाहिए आपने लिखा क्या है। ठीक है, आप उसको शॉर्ट में कॉमास में लिखो, एक एक लाइन में लिखो। ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन देने जाओगे तो आपका अगला एसआरटी चला छूट जाएंगे लास्ट के कुछ। सो एसआरटीज में व्हाट हैपन इज समटाइम्स, मेरे साइकोलॉजी टेस्ट में ऐसा हुआ था कि एसआरटीज रिपीट हुई थी। एसआरटीज वर, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट ऑलमोस्ट सेम। ऐसा होता भी है। हाँ, तो ऐसा होता भी है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपने फर्स्ट एसआरटी का रिएक्शन कुछ और दिया है, सेम सिचुएशन में सेकंड एसआरटी का आपने कुछ और रिएक्शन दिया, तो वो फिर आपका कॉन्ट्रडिक्शन और आपके थॉट प्रोसेस को एम्बिगुअस बनाता है, धुंधला। यू आर नॉट क्लियर विद योर थॉट्स। सो वो चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। आप एसआरटीज लिखने की प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, अपने दिमाग में सॉल्व करिए एसआरटीज। सॉरी, व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स सपोज यू आर गिवन एन एसआरटी। ठीक है, आपको कोई एसआरटी दी, तो कई बार लिखते हैं आई विल ट्राई टू डू दिस इन दिस सिचुएशन। सपोज यू आर गिवन सिचुएशन एक्स, द कैंडिडेट इज राइटिंग आई विल ट्राई टू डू दिस। अब ट्राई टू डू दिस मीन्स, अब ही इज नॉट क्लियर वेदर आई विल बी एबल टू डू दिस और आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। if there is a situation that you want to pursue your passion and your parent or guardians want you to pursue something else, what will you do? So what he writes is I will try to convince him। हम्म। मेरे अकॉर्डिंग इस चीज में the candidate do not have clarity whether he will be able to convince his father or not। अगर आप कन्विंस कर पाएंगे तो लिख दीजिए कि आई विल कन्विंस हिम, एंड हाउ यू विल कन्विंस हिम इन ब्रीफ। You are going to if you are writing you are trying to convince him, then you are not sure in your mind that you will be able to convince him and pursue your passion or not. So these are some basic things uh, that a candidate should remember and practice more. The eventual thing हाँ is to. बिल्कुल। एंड वेन यू जब आप टीएटी देते हो, यू कंटिन्यूअसली राइट दोज 12 स्टोरीज, तो आप अराउंड 50-54 मिनट्स के लिए लिखते ही रहते हो। एंड जी। उसके बाद आप जब डब्ल्यूएटी पे आते हो, तो आप जो सोच के भी आए होगे या सीख के भी आए होगे, समटाइम्स इट में हैपन कि वो 15 सेकंड में आप वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक फिजिकल माइंडसेट भी वो होता है कि आपके हाथ थक जाते हैं। जी। और आज के टाइम पे तो वैसे भी काफी सारी चीजें हैं, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन नोट्स भी लोग प्रेजेंटेशंस पे देखते हैं। तो लिखने की हम्म। हैबिट कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कम हो गई है। जी बिल्कुल। तो as विकास सेट कि बिल्कुल जो नेचुरली आ रहा है, अगर आप उसको प्रेजेंट करोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो बिफोर कमिंग टू द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, विकास, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट? सो बिकॉज आई नो के यू हैवंट टेकन एनी एसएसबी कोचिंग, so how you prepared by your own? What I did is I joined many Telegram channels. There are many Telegram channels in which you get SRTs, WATs, you get words, you got current affairs also, pictures also for TAT, PPDT. So I joined many, and I have a source of for pictures, for words, and for situations. So I kept on trying, and I wasn't see. I have many friends who have been in SSB, and many friends who are in the academies also. So I always took their opinion. What should I do? What should I not do? So they helped me a lot. See, everything can be inculcated. आपकी communication skills थोड़ी weak है, वो आप improve कर सकते हो। आपकी personality वो develop कर ही देंगे academy में। ठीक है, आप में स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना वो डेवलप करेंगे आपकी ट्रेनिंग में। द थिंग दैट दे कैन नॉट इनकलकेट इन यू इज ऑनेस्टी। Honesty is very important in SSB. You can lie to anybody, but do not lie to yourself. I know what I am
है ना, व्हाट इज माई कैलिबर, व्हाट शुड आई डू। अगर मैं किसी और की बताई हुई चीजें वहां पे कॉपी करके या उनको फैब्रिकेट करके कोशिश करने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, तो दे विल कैच यू। यू नो, एग्जैक्टली। आप अपना ट्रू सेल्फ, आप अपना ट्रू सेल्फ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना ट्रू सेल्फ प्रेजेंट कीजिए। अगर आप में वो बात होगी, यू हैव, इफ यू हैव इन इट, you will do it. See, to be a good leader, you should be competent enough. You know, we should have competence. An incompetent person can never be a leader. So आप पहले अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, आप अपनी स्किल्स को, यू नो, एवरी डिफेंस एस्पिरेंट नोज दैट व्हाट ही नीड्स टू इनकलकेट इन हिमसेल्फ। आप ट्राई कीजिए। द थिंग इज, एवरीबडी वांट्स शॉर्टकट, दे आर ट्राइंग दिस थिंग दैट या इन दिस मच टाइम वी विल इनकलकेट एंड वी विल बी थ्रू एसएसबी। ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कमिंग टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, I think the most easiest test is self description test, because you have to write what you are, you know, what your friends think about. One should know what his friends think about him, what his teachers and guardians think about him, what are his you know, strengths and weaknesses. और मैं एक अपने अगर एसआरटी का, सॉरी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का बताऊं, तो जो मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू में भी वही बोला। ओके। When interviewing officer asked me what your see, he asked me who is your best friend. So I took my friend's name. Then he asked me that what do you think he likes in you. So I said the same thing that I wrote in my self description test. So you have to be honest. You see, uh, before going to SSB, I was sitting and thinking that what could be the questions asked in my personal interview. So I sat down, write a PIQ form for myself. Then I analyzed that, okay, I have written this, I have these hobbies, my strengths, these are my strengths, these are my weaknesses. Then I thought that what interviewing officer can ask based on this PIQ form. So I sat down and I framed questions in my mind. Then I framed their answers, which helped me a lot in my personal interview. So this happened, and as you all know, my पर्सनल इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। आई वॉज वेरी, मैंने हॉबीज, सोचो आप क्या लिखी होगी। मैंने हॉबीज लिखी थी प्लेइंग क्रिकेट और लिसनिंग टू म्यूजिक। नो रीडिंग न्यूज़पेपर्स, नो रीडिंग बुक्स, नो करंट अफेयर्स। आप अगर सिंपल रखेंगे, जो आपको पता ही नहीं, अगर आप वो लिखेंगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने काउंटर क्वेश्चन किया, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। दैट बिल्कुल मीन्स यू आर नॉट ऑनेस्ट टू हिम। बिल्कुल बिल्कुल। And as you have already covered some much about your interview, but या yes, like in interview, क्या कोई ऐसा फेज आया जहाँ पे you think that you got stuck up, या फिर इंटरव्यू ट्राई टू, उसने प्रेशर डालने का कोशिश किया so that you can be stressed, and या what was your interview experience? Yeah, he tried to screw me. Mhm. He tried his best. Uh, because see, I will share some incidents. So I am from boarding school. I've studied in boarding. So when he came to know that I am from boarding school, the first question he asked is, "Tell me the bad habits you acquired in hostel." So I smiled and answered that, "Sir, uh, in hostel, I acquired a bad habit of waking up till late night. What Mhm. happens in hostels is generally boys do not sleep early and they wake up till late night, and which eventually uh, affect their sleep cycle and their health also, Mhm. you know." So मेरा पहला आंसर ये था। तो फिर इंटरव्यूइंग Mhm. ऑफिसर को लगा कि यार ये तो इसने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया। सो ही आस्क्ड, टेल मी वन मोर। Okay. So then again, I see these were real incidents, because we were being a hostel. You do generally do not sleep early. You sleep late night only. So the second thing is, I told him that a real incident only.
I have one of my roommates. I will not name him. I had one roommate who, in winters, he it was he was usually what he will do is he usually do not take bath for 2 or 3 days even, and even more. So what Okay. I told the interviewing officer is that, sir, I came from Himachal and it is very cold in winters out there. So what boys do is generally they do not take bath for 2 or more, even more days in winters. So it becomes Mhm. a little unhygienic. So these are the bad habits I acquired in hostel. Sometimes I do not take bath for 2 days or 3 days. So then again he smiled and continued. Then he know that यार ये बंदा तो यही बोलेगा इसके अलावा फिर then he jumped to next question. Then Great, great. then he asked me that you have done NCC. I told him that yeah, I've done NCC, sir. So which weapon do you fire? मैं बोला सर कि .22 डिलक्स. बोला what is Mhm. .22? बोला सर .22 is caliber of the bullet. So what is caliber? Sir, caliber is diameter of the bullet. बोला okay, tell me how much is .22 mm? बोला sir, how can I show you .22 mm? It is. बोला show me it on your finger. Then I uh, tried and then eventually looked at him and said that sir, .22 is very minute. I cannot make it on my finger and show it to you. Then he told me, no, no, try. Then I again tried and then eventually replied him back that sir, if we look an actual bullet is divided into two parts. One is the shell of the bullet and second is the actual bullet that is inside the shell, which is Mhm. very minute .22 dust like particle. Well, okay, I know you have knowledge about bullet. Then he again jumped into next question. Okay. So and एक ऐसा था कि जनरली ये मिथ रहता है कि अगर रैपिड फायर क्वेश्चंस जो होते हैं, हाँ हाँ। जनरली ये मिथ होता है कि अगर आपने रैपिड फायर स्किप किया तो बैड इंप्रेशन जाएगा. हम्म। मैंने रैपिड फायर में एक क्वेश्चन स्किप किया था. हम्म। देन ही आस्क्ड मी, Vikas, do you think you have answered all the questions? Well, हम्म। sir, I think I have answered, but if I forgot to answer any question, please let me know. Then he told me that you have forgot this question. Then I replied that question back. The main uh, aim of interviewing officer is he want to know yourself. हम्म। Sorry, he want to know you, and he will try to put you in a difficult zone. You know, he will uh, pressurize you. The thing he will observe is कि आप उसके प्रेशर में आके पैनिक करते हो या नहीं. अगर आप सिंपल हम्म। एक इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठ के पैनिक कर रहे हो तो यू कैन नॉट टेक यू नो डिसीजंस इन a situation where everything is against you. हम्म। So I remember in RSSB only, we have one candidate, just number 28. क्या? So he told me that in his interview he wrote his favorite subject was, he told that his favorite subject is, I think, mathematics. Then sir मैथमेटिक्स। asked then sir asked him a formula of mathematics and I think he was not able to answer, and he panicked and he was sweating. So he asked that sir, can I wipe out my sweat? So interviewing officer smiled and said that what happened, gentlemen, you are getting sweat in air conditioned room. Do you want a glass of water? So the main thing is you do not firstly, if you have wrote something, you should know that, and if you do not know that, there's nothing wrong about it. हर एक इंसान को पूरे सारी जहां की नॉलेज तो हो नहीं सकती. अगर आपको बिल्कुल। नहीं मालूम है तो आप सीधा बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, बट आई विल श्योरली लर्न दिस और ट्राई टू फाइंड दिस एंड लेट यू नो. कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका हम्म। आंसर नहीं दे पाए, फिर कॉन्फ्रेंस में आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया. हम्म। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट आपने वापस जाके उस क्वेश्चन का आंसर निकाला या नहीं. लाइक when he see, I took 1 year drop for NDA and all these things.
So he asked me how you utilized your 1 year drop time. So I answered that, sir, obviously I did my academic studies, and also I improved my communication skills. I told him that, sir, 1 year before I was not able to speak as fluent English as I am speaking right now in front of you. So he smiled. Mhm. As I told him that I've worked on my communication skills, and I improved my general awareness. I keep in touch with current affairs, you know. So the moment I said that was in touch with current affairs, he asked me, tell me three latest news. Great, great. So, Yeah. this was all about Vikas interviews, and I think that it was really nice. और विकास ने सारे क्वेश्चंस को बहुत precisely आंसर दिया, and it is Mhm. also the part one of the OLQ, effective intelligence, I think. Yeah, yeah. तो आपको भी सबको आई थिंक प्रिपेयर करना चाहिए कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड और कहाँ से आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है. नाउ विकास कमिंग टू द जीटीओ, है ना. Yeah. जीटीओ जीटीओ इज वन ऑफ द थिंग के लोग एसएसबी में सब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जीटीओ के बेस पे जज करने लगते हैं. अरे भाई उस बंदे ने पीजीटी बहुत अच्छा किया, वो रिकमेंड होगा. उस बंदे ने जीडी में बहुत बोला. बट इन जनरल ऐसा होता नहीं है. फिर हम लास्ट डे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इवन हाँ हमारे एसएसबी में ऐसा ऐसे ही हुआ था. आई विल नॉट टॉक हिज नेम. करेंटली ही इज इन एकेडमी बाय द वे. तो ऐसे ही हुआ था. तो इन जनरल हाउ वाज योर जीटीओ एंड वी लाइक थोड़ा जीडी जीपीई के बारे में आई विल रिक्वेस्ट यू इनके बारे में अगर हम डिटेल में थोड़ा जान सकें. So uh, so GD में what happened is कि हमें टॉपिक्स दिए गए थे. व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. देयर वर फोर ऑप्शंस. Disruption of food supply chains. This was one of the options. Second was threat of nuclear war. Third was कि oil crisis in sorry crisis in Europe for natural gas. Mhm. And fourth was something I am not able to recall right now. So everybody was discussing. So the moment GTO asked to discuss, everybody started shouting and started discussing. And I was sitting and I was listening to everybody from the starting that yeah the कौन सा बंदा क्या बोल रहा है. सो बिफोर गोइंग टू एसएसबी मैंने ये सोच रखा था कि जब भी फिश मार्केट बनेगा उसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा. मीन्स कि हम्म. जब भी एक बहुत ज्यादा फर्स क्रिएट होगा, फर्स्ट में मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा. जब हम्म. भी मुझे चांस मिलेगा, जरा सा मुझे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिला, मैं अपनी बात रखूंगा और किसी को काउंटर नहीं करूंगा. कोई कैंडिडेट या एस्पिरेंट अपना बात कंप्लीट उसका हुआ नहीं और आप बीच में उसको काट के कुछ और अपना टॉपिक वो कर रहे हो. तो दीज वर द थिंग्स आई डिसाइडेड बिफोर गोइंग टू एसएसबी ओनली. So first 5 minutes, I listened to every candidate. हम्म. When everyone was done with there, then I took a second and asked that, gentlemen, here I would like to introduce a point. Then I spoke my point. I completed Okay. it. Then everybody who were having their different point of view or who were discussing on another point, they engaged in a conversation with me. So, हम्म. like there was a candidate. He was his point was that the outcome of the Russia-Ukraine war would be threat of nuclear war. So I told him that see at that time when we were in SSB, Russia-Ukraine war uh, को हुए almost 6 months हो चुके थे. तो राइट. मैंने ये रिप्लाई किया कि मैंने बोला कि इफ रशिया had to use nuclear weapons it would have used so far. वो 6 महीने हम्म. क्यों वेट करता, अपने रिसोर्सेस सारे ड्रेन करता, एम्यूनिशन ड्रेन करता, मैन पावर ड्रेन करता. वो पहले ही अपना यूज कर लेता. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली मैंने उनको ये बोला कि
See, Russia and Ukraine are adjacent nations. Their हम्म, ethnicity is same. The ethnicity of people of Russia and Ukraine are same. Russia हम्म, would never want किसी कंट्री के जो लोग हैं उनकी सेम एथनिसिटी है, सेम, दे इवेंचुअली दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर. They would never use nuclear weapon in their adjacent country which will eventually affect their own people. तो मैंने उन्हें ये बोला. फिर मैंने अपना पॉइंट रखा कि सी व्हाट आई थिंक इज द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर कैन बी crisis in Europe because as winters are approaching and the biggest source of natural gas to Europe is Russia. हम्म, There are direct pipelines from Russia to Europe through which Europe consumes natural gas, which they use as a fuel in winters. So I countered his this point. Then another guy who got recommended with me हम्म, अच्छा। told me that हाँ उसका पॉइंट अलग था, मेरा पॉइंट अलग था, फिर भी हम दोनों रिकमेंड हुए. हाँ हाँ, इस फिर मैंने जब एनालाइज किया बाद में अपना एसएसबी, तो मैंने बोला इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट कि आप किस पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपकी हम्म, अप्रोच क्या है एक जीडी में, हाउ यू बिहेव इन अ ग्रुप. जरूर सही और गलत मायने वहां रखता है कि आपका अप्रोच सही है और आप ग्रुप में सही तरीके से परफॉर्म करते हैं. चेस्ट नंबर 14 ने अलग पॉइंट सपोर्ट किया, चेस्ट नंबर 16 ने अलग पॉइंट सपोर्ट किया, फिर भी दोनों रिकमेंड हुए. हम्म, तो इवेंचुअली आई एनालाइज दैट कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हम्म, अप्रोच और आपका डिलीवर करने का तरीका, आपका सबको कन्विंस करने का तरीका इंपॉर्टेंट है. तो जो हम मेरा बडी था, मतलब हम सबका बडी था, सत्यम, चेस्ट नंबर 14. सो ही इज इन द अकेडमी राइट नाउ. सो उसने बोला कि द बिगेस्ट थ्रेट इज फूड क्राइसिस. हाँ, या आई नो, द फोर्थ पॉइंट वाज फूड क्राइसिस, हाँ, food chain supply disruption. So, because his point was Ukraine is a very big producer of wheat, हम्म, so the war will affect the supply of wheat from Ukraine to rest of the world. Then I countered in a polite way. Countered means I replied him in a very polite हम्म, way that yeah, I agree, but if we see that the largest wheat and rice producing nations in the world are India and China, हाँ, if Ukraine is not able to supply wheat or food items due to this war, it is a very good opportunity to country like India to supply it to rest of the world, ओके, because we are the largest two producers. Ukraine is not the largest producer of wheat or हम्म, rice or something. We are the largest producers. We can take this as an opportunity and supply it to rest of the world. So हम्म, I said my point, and I was just I supported my point. Then I replied to their point of view. Then after some time, this मैंने सिर्फ पूरे जीडी में सिर्फ ये तीन बात की, तीन बार बोला. एक अपना पॉइंट, एक चेस्ट नंबर का जो सपोर्ट कर रहा था कि थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, उसका रिप्लाई. ज्यादा या कम बोलना आपका मेरे हिसाब से मैटर उतना नहीं करता. या पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, बट आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप में, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो दिस वाज अबाउट जीडी. एंड लेक्चरेट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं कार्ड देखा और थ्री टॉपिक्स देखे, उसमें एक वाज वेरी, यू नो वेरी वैसा टॉपिक था कि यार मैं ये बोल सकता हूँ, लाइक माय फेवरेट ऑथर. लेकिन हम्म, प्रॉब्लम ये है कि मैं बुक्स उतनी ज्यादा पढ़ता नहीं, तो मैं माय फेवरेट ऑथर वैसे ही डिस्कार्ड हो गया. सेकंड, एक कुछ टॉपिक था, वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो उस पे मैंने बोला नहीं, तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो, मैं बोला यार फर्स्ट दो टॉपिक तो दिख ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं. तो मैंने थर्ड टॉपिक देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म, वो मैंने पिक किया. फिर मैंने अपना, जब मेरा प्रीवियस टेस्ट नंबर अपना डिलीवर कर रहा था उसमें वो फ्रेम किया. तो मैंने इतना समझ रखा था कि लेक्चरेट का जो मेरे को गाइडेंस थी, तो ये थी कि आप अपने टॉपिक को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर आपका वैसा टॉपिक है डिवाइड करने लायक. हम्म,
लाइक रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा टॉपिक था, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक, पास्ट में उसकी कंडीशन कैसी थी, प्रेजेंट में रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी है, और फ्यूचर में वो कंडीशंस हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 3 टाइप पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। मैंने स्टार्ट किया पास्ट से कि अर्लियर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री वाज नॉट सो गुड, है ना, ऐसे मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं आ गया, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, एज वी ऑल नो दैट वी हैव रिसेंटली कंडक्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि हम कोविड से बाहर आए थे। हमने एक हम्म। वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट किया, तो उसमें रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल था। हम्म। तो मैंने बोला कि हमारा रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कैपेबल है, उसी कैपेबिलिटी की वजह से हमने अ, मतलब रूरल एरियाज में, बहुत सारे रूरल एरियाज में पूरे इंडिया को थ्रू आउट हमें वैक्सीनेशन कराने में उन्होंने हेल्प की, उस स्ट्रक्चर ने, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने। फिर मैं उस हम्म। पॉइंट पे आ गया कि अब क्या कर सकते हैं उसको फ्यूचर में और अच्छा करने का, और 3 मिनट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये अप्रोच यूज कर सकते हैं कैंडिडेट्स, मतलब अपने टॉपिक को। फर्स्टली आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप 3 मिनट बोल सके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडी एंड लेक्चर इट। अब या लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जीटीओ का सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा शायद उसी को एंजॉय करते हैं। दैट इज द पीजीटी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, स्नेक रेस, जीओआर, command task and all those stuff. Vikas, let us quickly cover those all things. पीजीटी से चीजें स्टार्ट होती हैं एंड यू हैवंट टेकन एनी कोचिंग एज यू सेड, तो कैसे या काउंटर किया पीजीटी? सो पीजीटी में ऐसा हुआ कि पीजीटी हमारे ग्रुप का कंप्लीट नहीं हुआ, जीटीओ ने बीच में पीजीटी रोक दिया, क्योंकि अ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जिनके आइडियाज वो लगा रहे थे, इम्प्लीमेंट हो रहे थे, कईयों के नहीं हो रहे थे। एंड जीटीओ वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन ही स्टॉप्ड द पीजीटी ओनली। सो हम्म। PGT में, because this was my first SSB, I was not much aware about the obstacles और structures। मैं हम्म। ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोग आइडिया इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम्म। मैं अगर फिफ्थ उनके बीच में घुस जाऊंगा कि यार मेरे पास भी आइडिया है, तू मेरा सुन लो, तो वो फिर थोड़ा फर्स्ट क्रिएट करा। मैं वेट कर रहा था किसी का आइडिया काम कर जाए। जैसे किसी का काम कर रहा था मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, आई विल हेल्प यू, तुम्हारा आइडिया काम किया, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ठीक है, उनको फट्टा चाहिए, मैं फट्टा उनको पास कर रहा हूँ। बल्ली हम टाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं हम कर रहे हैं, मतलब मीन्स मेरा जो रोल वहां पे हो गया था वो सपोर्टिंग का ज्यादा हो गया था। और यू नो जो वो आइडिया दे रहे थे वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। आइडिया मेरा नहीं था, पीजीटी में मेरा एक भी आइडिया मैंने नहीं दिया। फिर हम्म। तब तक सर ने पीजीटी स्टॉप कर दिया। फिर थोड़ी देर ग्रुप को बताया कि दिस इज नॉट द वे, जिसमें आप जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये वो बहुत डांट पड़ी, जीटीओ सर ने बहुत बोला। फिर उसके बाद जब एचजीटी आ गया, हाफ ग्रुप टास्क, फिर 5 लोग हो गए, 10 का ग्रुप पीजीटी में था, 5 का हो गया। फिर ऐसा था कि पीजीटी में जब नहीं हुआ, जब किसी का आइडिया एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया एक्चुअली जिसमें किसी का आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो सर हम्म। ने पीजीटी रोक दिया। फिर उसके बाद सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि वेन एवर यू आर डूइंग पीजीटी, हर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व करो, ढंग से ऑब्जर्व करो, और आपको उसी के अंदर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज टू ऑब्जर्व द ऑब्स्टेकल। ऐसा नहीं है कि हम्म। सीधा फट्टा लेके बल्ली लेके सीधा चल पड़े कि यार मैं करता हूँ, नहीं। आप पहले ऑब्स्टेकल को ऑब्जर्व कीजिए, अपने दिमाग में सोचिए कि फट्टा से यहाँ पे काम होगा, बल्ली से होगा, रोप से होगा, कैसे होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप रोप टाई कर सकते हो, बल्ली फंसा सकते हो, फट्टा फंसा सकते हो। तो वो चीज तब की आती, फिर एचजीटी में मैंने वो अप्लाई किया। तो एचजीटी में नीचे एक हुक था जहाँ पे रोप टाई होनी थी, सब फट्टा बल्ली के साथ खड़े होते, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि रोप बांधे कहाँ पे। तो हम्म। सब फट्टे बल्ली के साथ खड़े हैं, मैं साइड में ऐसे हैंड्स क्रॉस करके नीचे देख रहा हूँ कि यार टाई कहाँ करेंगे। और मेरे को वो पॉइंट मिल गया, और मैंने वो टाई किया, और सर ने देख लिया कि यार ठीक है, बंदे ने कर लिया, ढूंढ लिया, ऑब्जर्व कर लिया ऑब्स्टेकल, एचजीटी अपना हो गया कंप्लीट। एचजीटी में वैसे हो गया। फिर आता है ऑब्स्टेकल कोर्स। तो 3 मिनट का टाइम होता है, आपके पास ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अगर आपने टाइम पे कर लिया आप रिपीट कर सकते हैं। तो अब मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि
द फर्स्ट थिंग, हाँ मैं ये बहुत चीज पहले बोलना चाहूंगा कि ऑब्स्टेकल कोर्स में बहुत से लोग ये करते हैं कि उनके सामने कोई ऑब्स्टेकल है, लाइक मेरे सामने कोई ऑब्स्टेकल है जिसके कम पॉइंट है, लेकिन हम्म। मैं सबसे पहले उसको छोड़ के उस ऑब्स्टेकल की तरफ भाग रहा हूँ जिसके पॉइंट ज्यादा है लेकिन वो मुझसे दूर है। तो यहाँ पे हम्म। मैं अपना टाइम लूज करूंगा। हम्म। और जीटीओ सर इससे मुझ जीटीओ सर ने ये बोला कि इफ यू आर नॉट you know opting the obstacle right in front of you and you are running for the obstacle which is far from you, तो आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? आप बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर वहां से स्टार्ट करते इमीडिएटली आपके सामने चीजें, आप उससे स्टार्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ मार्क्स के चक्कर में कोर्स के दूसरे एंड पे जाके ज्यादा उससे स्टार्ट करें। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, हम्म। अगर आप क्विक है तो आप सभी ऑब्स्टेकल इवेंचुअली कर लोगे। तो मैंने हम्म। मेरे नियरेस्ट ऑब्स्टेकल मेरे साथ सामने कमांडो वॉक था, हम्म। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। इवेंचुअली जो जो आता गया मैं जो नियरेस्ट पड़ रहा था वो कर रहा था, क्योंकि आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज उस हिसाब से करना है जिस हिसाब। फिर मैंने अपने ऑब्स्टेकल जल्दी कर लिए थे। उसके बाद मैंने 3 ऑब्स्टेकल्स रिपीट किए। हम्म। तो जब मैं अपना टार्जन स्विंग रिपीट करने गया, तो हम्म। जीटीओ सर ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा वहां पे हुआ कि मुझे ऐसे बोला जोर से कि यू इडियट व्हाई आर यू डूइंग दिस, गो डू सम अदर ऑब्स्टेकल, कम डाउन। सो अब मैं सोचा कि यार अब ऊपर आ गया हूँ, नीचे उतरूंगा, क्या करूंगा, क्या उतरूं या कर जाऊं? तो मैंने क्या किया, सीधा जीटीओ सर के बोलने के बावजूद रोप पकड़ी और मैं कर गया। और इवेंचुअली मैंने तब ये नोट किया कि शायद जीटीओ सर ने उस टाइम कुछ लिखा होगा। तो मैं उनके बोलने के बावजूद उसको कर लिया। तो फिर मैं जब बैठ के एनालाइज कर रहा था कि क्यों सर ने ऐसा बोला होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सर चेक कर रहे होंगे मैं अपने डिसीजन पे मतलब टिका रहता हूँ या नहीं टिका रहता हूँ, या उनके बोलने पे मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा। तो मैंने स्टेप डाउन वैसे नहीं किया, उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे कर जाना चाहिए। अब उस टाइम मैंने इतना सोचने का वक्त नहीं था कि मैं सर की बात मान के नीचे उतरूं या स्विंग करके नीचे उतरूं। तो मैं हम्म। वो ऑब्स्टेकल कर गया। तो फिर और रही बात जियो आर की, तो जियो आर में ऑब्वियसली हमारा ग्रुप जीता था, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, बाकी 2 ग्रुप से। तो जियो आर भी बहुत अरे अच्छी है। हमारे ग्रुप में थोड़ी वजनी लगते ना यार। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे में थोड़ा लड़के वैसे थे, सबको चोट वोट लगी, लेकिन सब भाग के चढ़ के जल्दी जियो आर कर गए। दैट इज और द हमारा, वन इवेंट जिसमें हाँ बहुत ज्यादा ही मजा आता है। हाँ बहुत ज्यादा, सब अपना वो वॉर क्राई चिल्ला रहे थे, मैं अपना वॉर क्राई भूल गया, लेकिन बहुत मतलब बहुत स्मॉल मार्जिन से जीते थे हम लोग, कुछ ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीते। हाँ, हमारा वॉर क्राई वाज जय भवानी जय शिवाजी और समथिंग लाइक दैट, एंड इन हम्म। बिटवीन पीपल स्टार्टेड सेइंग जय भवानी जय शिवानी। हाँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीटीओ। फिर कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि सर ने मुझे थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की। प्रेसिडेंट सर ने पूछते कि हाउ वाज योर स्टे, मैं बोला सर आई वाज गुड, इट वाज गुड। एंड देन ही आस्क्ड कि एनी सजेशंस फॉर अस, बोला सर नो सजेशंस, एवरीथिंग वाज गुड। बोला नो नो टेल मी सम सजेशंस। तो मैंने बोला कि सर द फूड वाज गुड एंड accommodation was also good, I don't think that there is anything to improve. तो then he asked me, no no tell me one. Then I again हम्म। replied, sir, currently I'm not able to recall immediately that what needs to be improved. बोलता, don't no worries, take your time and tell me. Then I realized that he will not leave me. I have to tell something. So then what happened is last one day before conference, in the evening we were having a conversation. You were also there, that the uh, SSB should board should provide us iron facility, to iron the clothes. So I said the same thing there, that sir, if board could provide us the facility of iron, it would be really helpful for the candidates to iron their clothes before interview. So he smiled and said that I think, gentlemen, you have read it somewhere in Facebook or WhatsApp. Tell me original one.
Then I smiled and replied him that, sir, this was my original one. And then he smiled back and said that, okay, Vikas, it was nice talking to you. All the best for your results. And my conference was over. Great, great. So it was all about Vikas SSB, and it was his first and last SSB, I think, Yeah, yeah. है ना? एंड विकास वाज द वन, विकास ने भी एनटी कुछ क्लियर नहीं किया था, एंड वो डीएस भी नहीं गया था, बट स्टिल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मेक इट एंड गॉट रिकमेंडेड. बट देन उसके बाद क्या हुआ, व्हाई ही जॉइंड मर्चेंट नेवी, वी विल कम अपॉन इट लेटर. एंड थैंक यू विकास फॉर सच insightful conversation on SSB. So thank you Vikas, and it was such a great time with you in SSB and here as well. And thank you everyone for watching this. Do like, share, subscribe with your friends if you have liked this episode. And do share your queries, your questions in the comment box, and we will try to solve them, and come back to you again. Thank you. Thank you.